Hello, hello, hello. Yes, Good sir. morning. Good morning, beta. Good morning, sir. Hello. Okay, sure. So we continue. As per the Banking Regulation Act, who is the Banking Regulation Act, beta? 1949. Banking Regulations Act. भूल गए आप जल्दी बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब का बेटा? 1949 ओके बेटा. amendments 2020. ओके. अमेंडमेंट 2020. Okay. Yes, good. The Banking Regulation Act 1949. Okay. So definition according to section 5B of the Banking Regulation Act 1949 तहत ये definition है banking की. So simply the definitions and the functions of the banking is equal to accepting plus advancing. Okay. So management of the banking company and day-to-day bookkeepings, posting, and various type of the ledger book, the maintain of the banking, isn't it now? So each and everything the bank related, जो basically background है, okay, theory parts है हमारा, there are the total the completed now. उसमें that means the third schedule section 29 as per the banking regulation act तहत फॉर्म ए फॉर्म बी के बारे में हमने डिस्कशन किया है. फॉर्म बी भी प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड है. उसके बाद शेड्यूल्स, आई रिपीट अगेन, आई ट्रेस रिपीट अगेन, आई ट्रेस रिपीट अगेन, शेड्यूल 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 and profit and loss account or balance it. So I recap again briefly. So Form A related by the balance sheet, Form B related by the profit and loss account. उसमें टोटल कितने शेड्यूल हैं याद रखो. आई रिपीट अगेन एंड दिस पॉइंट इज अ टाइम टू टाइम ट्रेस नाउ ट्रेस नाउ ट्रेस नाउ. सो टुडे टू नाउ, सो हमको आज प्रॉब्लम देखने का है. ओके. सो फर्स्ट ऑल ऑफ पॉज आई रिकैप बैकग्राउंड बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है. आई रिपीट अगेन्स. फॉर्म ए related the balance sheet related total the schedules is a 12. So capital and liability related there are the five schedules. That means 1 to 5. Assets related 6 to 11 तक जो है शेड्यूल्स यहाँ पे आपको मेंशन करने का है. उसके बाद फॉर्म बी है. फॉर्म बी रिलेटेड प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट. इसमें भी देर आर द फोर शेड्यूल्स है. So income related 13 and 14 schedules है. Expenditure related by 15 and 16 schedules है. Okay. So each and everything top to bottom there are the 16 schedules. Descriptive में मैंने आपको बताया है as per the 31st March current year and previous years. Okay. So first schedule related by the capitals. There are the different type of the capitals, the authorized capital, issue capital, subscribe capital, call up capital, etc. Okay. So all the students the systematically noted now. आपने नोट किया नहीं है? Okay. Second by I hope now सबने लिखा है. नोट अपने स्क्रीनशॉट नॉट अलाउड मैंने किया था लास्ट लेक्चर में. आपको राइट डाउन नहीं करना है. ओके. कम टू पॉइंट शेड्यूल्स नंबर 2, रिजर्व एंड द सरप्लस. ओके, ये भी हो गया है. इसमें भी देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजर्व. ओके, डिपॉजिट है थर्ड शेड्यूल में.
फोर्थ शेड्यूल में बोरोइंग है, अदर लायबिलिटीज है, प्रोविजंस दिया है, कैश बैलेंस दिया है, बैलेंस विद द बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोट्स है, इन्वेस्टमेंट है। ये हो गया ना लिखना बेटा? एडवांस, हेलो, एडवांस है, फिक्स असेट्स है, अदर असेट्स है, कंटीजेंसी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड अर्न है, अदर इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंटेड है, operating expenses hai, each and everything's now. Okay, so today to the start now, the write down the first problem. Yes, illustrations number one, problem number one. From the following the information, prepare the profit and loss account of the ABC Bank Limited for the year ended 31st March 2015 with the necessary schedules. Which is the necessary schedule? क्या है यहाँ पे आपको? क्या बोला है? फर्स्ट लाइन देखो, पढ़ो क्या है यहाँ पे? Which type of the informations? This is the problem number one. Illustration number one. From the following the information, खालील जी माहिती आहे, prepare the profit and loss account. अरे वाह, यहाँ पे क्या है? क्या क्रिएट करने का आपको? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे। लिसन टू केयरफुली, अभी किसी ने ही प्रॉब्लम लिखने का नहीं, ओनली सुनने का। लिसन टू केयरफुली ऑल स्टूडेंट, कैन यू, हेलो, आई एम ऑडिबल्स? Yes, sir. कोणीही राईट डाऊन करायचं नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन ऑल द स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू केयरफुली, लिसन टू केयरफुली, बाद में आपको दिक्कत नहीं होंगे। ओके, जब जब मैं बोलता हूं ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का, वही फॉलो करने का। ओके, अभी किसी ने ही राइट डाउन नहीं करने का प्रॉब्लम। ओके, पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है we understood now each and everything, the micro level, the conceptual, the adjustment is a very important things now. Okay, and the relations, the theory part of, as per the schedules, as a banking act, the schedules is a very important things, my dear friends. Okay, don't write down. Okay, so come to the point. Chalo, can you see PPT beta? Hello, Yes, response is sir. a must and a fast Yes, sir. response. ओके, समजून घ्या प्रॉब्लेम, ज्या वेळेस मी सांगेल त्यावेळेसच राइट डाउन स्टार्ट करायचं, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया है बेटा? इंस्ट्रक्शंस देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द बैंकिंग फाइनल अकाउंट। बँकिंग फायनल अकाउंट सहजासहजी विद्यार्थ्यांचं टॅली होत नाही. आय रिपीट अगेन, ऍज पर द कंपॅरिझन टू अदर यूनिट एंड चैप्टर। आई रिपीट अगेन, का होत नहीं है? आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने के बच्चे लोग, याद रखो। तो कहां पे आपकी गड़बड़ होती है, मैं यहाँ पे ट्रेस ट्रेस आउट कर रहा हूं। यहाँ पे ओनली क्या बताया है आपको? क्रिएट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे देखो, दिख रही है बेटा? Okay, from the following the information, prepare the profit and the loss account of the ABC Bank Limited for the year ended 31st March 2015. Okay, with the necessary schedules. Okay, with the necessary schedules. आप देखो, हाँ, listen to carefully. Hello, are you concentrate? हेलो, हो गया ना? आपका कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट Yes, करो, हाँ। sir. ओके, यहाँ पे देखो, अभी क्या करने का है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या बताया है? द ईयर एंडेड 31st March 2015, यहाँ पे दिया है ना बेटा? ओके, विद द नेसेसरी शेड्यूल्स। तो अभी मुझे एक क्वेश्चन बताओ, ऑल द स्टूडेंट, द वन सिंपल क्वेश्चन। प्रत्येक गोष्टीला अचीवमेंट करण्यासाठी बिफोर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था।
ओके, आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने का है, आपको गोल्ड मेडल लेने का आहे, सहज भेटतं का? Nobody's know. So pre-planning and apply the strategy. Okay, so this rule the apply in this the problem, in this the chapter, in this the unit now. So profit and loss और necessary schedules यहाँ पे बताया है। तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, एक आंसर बताओ मेरे क्वेश्चन का, माय डियर फ्रेंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड हाउ मच द शेड्यूल्स? I repeat again, profit and loss form B related how much schedules? 4 schedule Four 13, 14, schedule. 15 and 16. करेक्ट, करेक्ट। ये तो श्योर हो गया ना बेटा कि आपने को इस प्रॉब्लम में देर आर द 4 शेड्यूल ही लेने का है। यस एंड नो? ये तो फिक्स हो गया ना, ये डिसाइड हो गया ना। कैसे, किस प्रकार से डिसाइड किया? बिकॉज यहाँ पे प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्रिएट करने के लिए बताया है, और द उस रिलेटेड बाय द नेसेसरी शेड्यूल बताया है। यस या नो? तो ये बात ये डिसाइड हो गई है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्रिएट करने का है, और उस रिलेटेड 16 या 16 में पूरे के पूरे शेड्यूल क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नोबडीज नो, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको ट्रेस किया है किस पे, यहाँ पे ये देखो, थेरी पार्ट में ओपन करता हूँ बेटा। ये देखो, मैं अभी भी रिकैपिंग में भी बताया है आपको कि बेटा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, जनरली इसको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पे रॉन्ग होता है स्टूडेंट का। ये देखो बेटा, आपको क्या करने का है, कैन यू सी पीपीटी बेटा? ओके, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करने का है, और शेड्यूल्स अभी मैंने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड देयर आर द 4 शेड्यूल्स। which the schedules? Huh? 4. Which type? That means the income related 13 and 14. Okay. And expenditure related 15 and 16 शेड्यूल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का है। एज इट इज जो मैंने यहाँ पे दिया है, 13 का देखो क्या क्या है, कहाँ है, चला गया 13। ओके, ओके, ये देखो 13, इंटरेस्ट एंड अर्न, क्या क्या देखा है यहाँ पे, क्या क्या मेंशंस किया है इन द डिस्क्रिप्शन, द फॉर्म इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल्स 13। ओके, एंड 14 का क्या है बेटा? अदर टाइप्स ऑफ द इनकम इन दिस द फॉर्मेट। ओके, 15 में क्या दे दिया बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड 16 को क्या दिया है? हेलो, समझ में आ रहा है ना बेटा? हेलो, डू यू अंडरस्टँड नाउ? Yes, sir. समजतं ना? थर्ड इयरचे विद्यार्थी आहात तुम्ही। न्यूमरिक सब्जेक्ट हा स्कोरिंगचा विषय आहे। ओके, आय रिपीट अगेन, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, बट आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी अप्लाई नाउ। ओके, चलो कम टू द पॉइंट। यहाँ पे ओनली नेसेसरी जो शेड्यूल्स हैं, अब तो ये डिसाइड हो गया है, ये प्रॉब्लम पे ही आपको डिसाइड करने का है हाउ मच शेड्यूल्स द क्रिएट नाउ। यहाँ पे तो शेड्यूल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताने का है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बारे में भी आपको क्या क्या है एक्सप्लेनेशंस, वो आपको प्रेजेंट करने का है। शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16 बहुत सिंपल है। ओके, याद कैसे रखने का है? फर्स्ट जो शेड्यूल दिया है मैंने, 1 to 5 जो शेड्यूल है, हेलो, 1 ते 5 जे शेड्यूल्स आहे कशाशी संबंधित आहेत बेटा? फर्स्ट 1 to 5 रिलेटेड द शेड्यूल्स, क्या? Liability. कैपिटल एंड लायबिलिटी, ऐसा बताने का बेटा। हाँ, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। उसके बाद, उसके बाद क्या है बेटा?
6 to भी कंटिन्यू आगे 12 तक। हेलो मोनिका, मोहिनी, केशव, अरे ओपन द नोटबुक, उसमें देखो ना लायबिलिटी क्या है, asset related each and everything the schedules now as per the bank regulation act section wise। yes, how much, फर्स्ट क्या हो गया, कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज, हाउ मच 1 to 5 तक शेड्यूल्स है। उसके बाद उसके बाद 6 to 11 तक क्या है, असेट साइड्स, Okay. जितने शेड्यूल्स है ये देखो। आपने राइट डाउन नहीं किया शायद, आई थिंक राइट डाउन किया ना। हेलो, यस ये सर किया। पीपीटी राइट डाउन किया है कि नहीं, तो फिर क्यों नहीं बता रहे आप, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा। द थर्ड ईयर स्टूडेंट, द प्रेजेंट, अभी क्लास में जो स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है अभी फिलहाल, 20 विद्यार्थी है थर्ड ईयरचे तुम्ही, तो आपका एक किसी का भी रिफ्लेक्शन आंसर नहीं आ रहा फास्ट, क्यों, इसका मतलब आपने राइट डाउन नहीं किया है। मैं टाइम टू टाइम मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके हाथ में से वो जाना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग द कंसेप्ट बाय द राइट डाउन, मेंशन इन द योर द नोटबुक, शेड्यूल्स क्या है, बेसिकली बैकग्राउंड क्या है। और यह हमारा टोटल चैप्टर शेड्यूल पे ही डिपेंड करता है। जिस स्टूडेंट को, जिस बंदे को शेड्यूल समझ में आ गया, ओके, वो इजीली वो सॉल्व करेगा। ओके, चलो, मेरा काम है आपको बताने का है और क्या करने का है क्या नहीं। सो डिसाइडेड नाउ एज यू विश, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया किस प्रकार आपको डिसाइड करने का, द हाउ टू डिसाइड नाउ, द हाउ मच द क्रिएट द शेड्यूल्स नाउ। यहाँ पे हमको बताया है ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करने का है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड बाय द नेसेसरी द शेड्यूल द एक्सप्लेन नाउ। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप हो गई बेटा, आर यू अंडरस्टूड नाउ। हेलो, यस सर। ये सब Yes, sir. समझ रखना, सादा सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, मगर उसका मीनिंग बहुत स्ट्रांग है, बिग है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ओनली वन वन फॉर्म भी क्रिएट करने का है एंड नेसेसरी शेड्यूल्स बताने का है आपको। ओके, और डिफरेंस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रिएट द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द पास द क्रिएट द नेसेसरी द ओवरऑल द शेड्यूल्स, तो आपका प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो my levels, the all the student, the simple the problem illustrate number 1। अब लिखो, राइट डाउन करो, all students राइट डाउन। ओके, राइट डाउन करो। हेलो, जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आता तब तक पेन उठाने की नहीं। ओके, आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने का है ना, तो फॉलोइंग द माय इंस्ट्रक्शंस। ओके, follow my instruction। okay, Mohini, Mehta, Sneha, Vidya, Pooja, okay, are you ready, write down। महिमा, आवाज येतो बेटा, महिमा, Yes, sir. राइट डाउन केले ना बेटा, तो ओवरऑल द थेरी पार्ट रिलेटेड द बैंकिंग अकाउंट, बैंकिंग फाइनल अकाउंट, सबके पास स्पेशल नोटबुक होना चाहिए। ओके, उस पे फर्स्ट से सेकंड पेज पे आपका टोटल सिलेबस। ओके, उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग द प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली मेंशन करने का है, कितने हो रहे चैप्टर, यूनिट कितने हो रहे हैं, ईच एवरीथिंग। ओके, द सेपरेटली क्रिएट द नोटबुक रिलेटेड द एडवांस अकाउंट। ओके, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया लिखना बेटा। चलो, यहां पे क्या दिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख। I repeat again, interest on loan
ओके, अब समझ में आ रहा है ना? ओके, यस। ओहो, चलो। इंटरेस्ट ऑन लोन 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 30,000, डिस्काउंट ऑन बिल 1,52,000, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 2,40,000, commission 10,000, exchange and brokerage 20,000, interest on fixed deposit 2,75,000, interest on saving deposit 87,000, salary and allowances 1,50,000, postage, telegram and stamp 10,000, sundry expenses 10,000, rent and tax 25,000, director fees 30,000, and last by audit fees 10,000. There are the 13 entry in this the simple problem illustrations number ones, the prepare the profit and loss account and related the with the necessary the schedules. Are you completed now? प्रॉब्लम हो गया क्या? हेलो, No, sir. ओके, सिस्टमेटिकली राइट डाउन करो। कुछ समझ में नहीं आता था बताओ सर, हाउ मच द अमाउंट, हाउ मच द वर्ड, क्या लिखा है आपने, कितना अमाउंट मेंशन है? ओके, एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट्स, बता सकते हो। Audit fees 10,000, director fees 30,000, rent and tax 25,000, sundry expenses 10,000, postage, telegram, stamp 10,000, salary and allowances 1,50,000, interest on saving deposit 87,000, interest on the fixed deposit 2,75,000, exchange and brokerage 20,000, commission 10,000, interest on cash credit 2,40,000, discount on bill 1,52,000, interest on overdraft 30,000, interest on the loan the 3 lakh. Top to bottom, bottom to top, each and everything. So the mention the problems. So prepare the profit and loss account, the and the necessary the schedule explain. Okay? होगा सर बेटा? नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ये हो गया क्या बेटा? यस सर। All student. Yes, sir. ओके, चलो अभी सेकंड स्लाइड्स देखो। सेकंड स्लाइड्स देखो, ये फर्स्ट हो गया। अभी यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट दिया है, देर आर द फिफ्थ फोर्थ एडजस्टमेंट नंबर वन, rebate on the bill discount rupees 30,000, second by bad debts rupees 40,000, third by provision for tax rupees 34,000, and the last by fourth adjustment additional information interest of rupees 4,000 on doubtful debts was wrongly credited to interest on loan account। लास्ट की देखो, हाँ, जर्नल एंट्री क्या है? होगा बेटा additional information, there are the 4 types of the informations। लास्ट की जो है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,000 ऑन doubtful debts was wrongly credited
credited to the interest on loan account. Okay. चलो होगा बेटा. हेलो. Yes, sir. बाकीचे विद्यार्थी काय म्हणतायत? सर सेकंड साइड दाखवा ना एक मिनिट. ओके बेटा. ओके ओके बेटा. यस. कुछ बाकी है तो बताओ मुझे. यस हो गया बेटा. हाँ सर हो गए, लास्ट के दो बाकी थे, हो गए. ओके. डायरेक्टर फीस आणि ऑडिट फीस 30,000 एंड 10,000. ओके. एडिशनल एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मेंशन करने का है. एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ओके. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है मगर जिसको शेड्यूल समझ में आ गया वही सॉल्व कर सकता है. ओके. फर्स्ट क्या करने का है आपको? डिसाइड करने का है. सो हाउ मच द नेसेसरी द शेड्यूल्स एंड बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म ए या फॉर्म बी क्रिएट करने का है. सो फर्स्ट micro level be concentrate, be read now the problems. So decide each and everything, pre-planning strategy, then the apply now. अपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा है टोटल प्रॉब्लम्स, अपनी डिसाइड भी किया है. देर आर द 4 शेड्यूल्स क्रिएट करने का है आपको. उसमें शेड्यूल्स नंबर 13, 14, 15 एंड 16. ओके. उस पे ही निर्भर करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया. चलो. हेलो. हाँ सर हो गए. अभी आपके सामने पीपीटी है. ऑल स्टूडेंट बी नोटेड नाउ. राइट डाउन इन योर द नोटबुक. अपने प्रॉब्लम लिखा है. अब देयर आर द 4 schedules necessary create the now in these the problems. Number 1, 13 schedules. Number 2, 14 schedules. Number 3, 15 schedules. And number 4, 16 schedules. How much total? 16 schedules. Okay. अभी only one question, simple question. Okay. All student के लिए मेरा एक first question. आपके पास शेड्यूल्स है. आपके पास फॉर्म ए, फॉर्म बी, टोटल डिस्क्रिप्शन लिखा है. अभी वन क्वेश्चन है मेरा. ये टोटल कंटेंट कितने हैं यहाँ पे? 13 कंटेंट्स. दैट्स मींस डायरेक्टर फीस, डिस्काउंट बिल, सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा. ओके. सो आपको पोस्टिंग करने का है. सो प्री प्लानिंग द फर्स्ट कंटेन है इंटरेस्ट ऑन लोन्स. क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन. तो कौन से शेड्यूल्स से वो रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन लोन्स. हु इज द शेड्यूल्स रिलेटेड नाउ? फर्स्ट कंटेन इंटरेस्ट ऑन लोन. समझ में आ रहा है ना बेटा? सिंपल एकदम लैंग्वेज यूज करा हो वेरी वेरी इजीली जो आपने राइट डाउन किया है
वही आपका बेस है, सब आंसर आपके पास है। First contain interest on loan. Amount is 3 lakh. Amount is 3 lakh. Yes या no? तो ये बताओ मुझे, ये फर्स्ट कंटेन कौन से शेड्यूल से रिलेटेड करता है? आपने तो डिसाइड किया है 4 शेड्यूल, जो नेसेसरी 4 शेड्यूल है वही क्रिएट करने का है। दैट्स मीन शेड्यूल 13, 14, 15, 16। अब फर्स्ट कंटेन है इंटरेस्ट ऑन लोन, हम ओनली डिस्कशन कर रहे हैं। देन द पोस्टिंग ऑन द फर्स्ट कंटेन्स नाउ, एंड कहां पे, किसके साथ, कौन से शेड्यूल के साथ उनका रिलेशंस है? फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो शेड्यूल कौन कौन सा है, 13 से लेके 16 तक है। तो ये कंटेंट कहां पे बैठता है, देखो चेकआउट करो, फॉर्मेट देखो और शेड्यूल्स नंबर बताओ मुझे। हाँ बताओ, यस, हेलो, हेलो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से शेड्यूल से रिलेटेड करता है, बताओ शेड्यूल्स नंबर, बोलो नंबर, बोलो मुझे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ, कौन से शेड्यूल में दिख रहा है देखो ना, हेडलाइन पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, कहां पे दिख रहा है क्या वर्ड, कौन से शेड्यूल में दिख रहा है वो वर्ड, ये इंटरेस्ट ऑन लोन। पर इंटरेस्ट कहां पे दिख रहा है देखो, कौन से शेड्यूल में? Schedule 13. करेक्ट बेटा, शेड्यूल्स नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसीलिए मैंने शेड्यूल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ट्रेस आउट कर रहा था, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो आपको लगता होगा यार सर फास्ट जल्दी से सॉल्व करना, ये बेसिकली बैकग्राउंड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। मगर जब तक आपका बैकग्राउंड, आपका जो बेस है स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज मैंने इस प्रॉब्लम में, इस चैप्टर में शेड्यूल आपको बताया नहीं, तो फिर आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, और अरे यार ये इसकी एंट्री कहाँ पे आ गई, यहाँ पे इसकी पोस्टिंग किधर हो गई, ये कौन से शेड्यूल में चला गया। हाँ, इसलिए टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट टू 16 तक जितने जितने शेड्यूल्स है उसका डिस्क्रिप्शन सिस्टमेटिकली मैंने आपको बताया है। ओनली आपको पोस्टिंग करने का है, उसमें से टोटल 16 या 16 तक जितने शेड्यूल है उतने भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओनली बाय द फॉर्म ए एंड फॉर्म बी रिलेटेड द necessary create the schedules। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड देर आर द 4 शेड्यूल डिसाइड आपने किया है, 13, 14, 15 एंड 16। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कंटेन, वो कौन से शेड्यूल से रिलेटेड करता है? शेड्यूल्स नंबर 13, शेड्यूल्स नंबर 13। देखो कुछ लिखा है क्या आपने, इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, देखो open the notebook and check out the schedules number 13। हेलो, अरे, आर यू कंफ्यूज? मोहिनी, प्रियंका, महिमा, कृष्णा, स्नेहा, विद्या, पूजा, पूजा दाखव बरं तुझी नोटबुक बेटा, कॅन यू प्रेझेंट नाव पूजा? हॅलो, आवाज येतो ना पूजा?
रिस्पॉन्स का देत नाहीये. पूजा, हॅलो, आय एम ऑडिबल्स. कॅन यू हिअर मी पूजा? हॅलो, कौन दाखवतो रे? बताओ आपकी नोटबुक बेटा. कृष्णा, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? हाँ, स्नेहा, स्नेहा बता सकते हो आप आपकी नोटबुक बेटा? हाँ, इसका मीनिंग क्या है निकल रहा है फिर आपका? इसका मतलब आपने राइट डाउन नहीं किया है. नोट वर्किंग नो अपनी इसमें नोटबुक में टॉप टू बॉटम जितने जितने शेड्यूल्स मैंने दिए हैं. हाँ, हेलो, मोहिनी, मोहिनी. यस सर. हाँ बेटा, दाखवू शकती बेटा? बताओ बेटा, मोहिनी. हाँ, राइट डाउन किया कि नहीं आपने टोटल शेड्यूल जो कल सर मी बताए थे? केलेलं आहे, पण जर प्रेझेंटिंग चालू केली ना तर हाँ, खूप हाँ. नेटवर्क इश्यू येईल. कारण आहे ना माझं नेट क्लिअरली काम करत नाहीये. इकडे खूप आभाळ आलेले, पाऊस पण चालू आहे. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके. बिग प्रॉब्लेम आहे. ओके. आणखी रे कृष्णा, कृष्णा. येस सर. अरे 2 ते 3 वेळेस मी कॉल म्हणजे तुम्हाला आवाज देतो. सर नेट प्रॉब्लेम चालू आहे. 4 ते 5 वेळानंतर कुठंतरी हळूच यस नो. सर नेट हा, हॅलो. हा. सर नेट प्रॉब्लेम आहे थोड़ा सर सध्या. मेरी तो आवाज आ रही है ना आपकी तरफ बेटा? हाँ कभी कभी आ रही सर, कभी कभी कट रही है थोड़ी सी. कभी कभी इसका मतलब आपका नेट ठीक नहीं इश्यू है. है सर थोड़ा सा. इसलिए हाँ नेटवर्क बारिश आ इश्यू रही है है. ना थोड़ी बाहर. हाँ, इधर भी बारिश आ रही है बेटा. यहाँ पे भी बारिश है. अपनी कॉलेज पे भी बारिश हो रही है पूरी. ओके. ओके सर. प्रियंका, कैन यू सी ओवर द नोटबुक बेटा? प्रियंका, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ. प्रियंका, आवाज येतो ना बेटा? हाँ, बताओ. यस.